Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pak Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pak Studies class. My dear students, let's quickly have a look at today's student learning outcome. आज के lecture में हम कौन सा objective attain करेंगे? Let's have a look. So you will be able to analyze the important political events from 1906 till 1920. And you will also be able to analyze the important political developments between 1920 till 1939. And further, you will also be able to evaluate the political development that undertook during 1940 till 1947. So my dear students, इसका part A जो है वो हम already discuss कर चुके हैं, जिसमें हमने 1905 जहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी उससे आगे हमने खिलाफत मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक यानी कि 1932 के दौर तक हमने तमाम पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स थी वो हमने कवर कर ली हैं. सो दिस इज पार्ट बी, लेक्चर पार्ट बी ऑफ योर lecture. So my dear students, this will be covered under knowledge 1.11 analysis of political developments 1906 till 1947. So आज हम इसको आगे डिस्कस करेंगे और ये आपके knowledge 1.11 के नीचे डिस्कस हुआ है तमाम. So we will be discussing it all. So my dear students, जल्दी से आप अपनी बुक्स ओपन करें पाक स्टडीज की आइडियोलॉजिकल बेसिस स्ट्रगल एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. So pause the video and quickly open your books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, जल्दी से हम इसको recap कर लेते हैं कि हमने previous lecture में यानी कि जो part A था इस lecture का हमने कौन-कौन सी political developments जो है वो already cover कर ली हैं and then we will connect it in today's lecture. So previously we discussed about the partition of Bengal which happened in 1905, then the Shimla deputation 1906. Then this has been written 2 times. So Parliamentary reforms in 1909. Then World War I happened in 1914 till 1918 और इसमें बहुत से important political events यानी कि इसका बहुत असर जो है वो सबकॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे भी पड़ा था. Then the Lucknow Pact happened in 1916. The Jallianwala Bagh massacre, a very sad event, it happened in 1919. Then the Khilafat movement that took place in 1919 and 1924. And unfortunately ये जो है बहुत बुरी तरह से जो है इसको जो है opposition का सामना करना पड़ा था and ultimately it stopped. The non-corporation movement happened in 1920 till 1922. उसके बाद साइमन कमीशन जो है वो आया था 1927 में जिसको बहुत ज़्यादा opposition का सामना करना पड़ा था from all the walks of the life within India. The Nehru report in 1928 और इसके जवाब में कायदे-आज़म ने अपने 14 points 1929 में जो हैं वो दिए थे. Then Allama Iqbal's Allahabad address, a very historical moment in 1930, and then the round table conference ये 3 दफ़ा हुई थी from 1930 till 1932. So my dear students, ये कुछ political developments थी जो कि 1905 से 1932 तक हुई जिसका partition ऑफ इंडिया पे या सब कॉन्टिनेंट पे बहुत ही गहरा असर है और अल्टीमेटली यही वो पॉइंट्स हैं, यही वो डॉट्स हैं जिनको अगर हम कनेक्ट करें तो दे लेड टू द पार्टीशन ऑफ ऑल इंडिया सब कॉन्टिनेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक जहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस दैट happened in 1930 till 1934. So my dear students, ये कैसे start हुई? Initiated by the Mahatma Gandhi in 1930, the civil disobedience movement called for the non-violent resistance against the British laws in Texas. So my dear students, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का चक्कर चल रहा था और तमाम पावर जो है ब्रिटिशर्स अपने हाथ में रखना चाह रहे थे और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत से जो मामले हैं वो अपने हाथ में जब इख्तियारात लिए और बहुत ज़्यादा अनइवन और अनजस्ट इनका रवैया था लोकल्स के साथ और उसके अलावा बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो थे वो लोकल जो अवाम है उसको पे करने पड़े थे. लॉज जो है वो कुछ इस किस्म के थे जो कि फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था. सो इस सूरत में सिविल डिसोबीडियंस हुई. सिविल डिसोबीडियंस दरअसल क्या होती है इस लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले. सो सिविल डिसोबीडियंस हम कहते हैं कि जब एक लॉ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए और लोकल्स जो हैं वो उसको मानने से इनकार कर दें, ठीक है, तो इसको हम सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं. एंड इट लेड बाय महात्मा गांधी हिमसेल्फ और उन्होंने एक हिस्टोरिकल डैंडी मार्च की थी और इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि सॉल्ट इवन नमक के ऊपर भी जो है वो इतने ज़्यादा टैक्सेस थे कि वो लोकल लोग जो हैं उनकी उससे बाहर थे अप्रोच से. तो उन्होंने क्या किया कि वो सत्याग्रह जो है
वहाँ जो सॉल्ट की एक्सट्रैक्शन थी वो उन्होंने खुद अपने हाथों से की एंड इट वाज बेसिकली द सिविल डिसोबीडियंस। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये जो अनजस्ट लॉज है और जो ज़्यादा टैक्सेस लोगों को पे करने पड़े हैं, दे शुड बी फिनिश, और ये इनको कम करना चाहिए और ऐसी गवर्नमेंट होने चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए कि जो कि आम आवाम के अप्रोच में हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, और ये जो कैंपेन थी सिविल डिसोबीडियंस की, बेसिकली इसने आगे जाके बहुत कंट्रीब्यूट किया to the independence and the partition of Indian subcontinent. So moving forward towards the next important event, which was the Government of Indian Act 1935. So ये act जो है ये बहुत important है और ये partition के बाद भी follow होता रहा था, लेकिन इसके क्या important points थे उनको हम देख लेते हैं। The Government of Indian Act 1935 introduced significant constitutional reforms, including provisional autonomy and limited franchise rights. So my dear students, इन्होंने provincial autonomy तो दी, ठीक है, जो लोकल कैंडिडेट्स थे उनके हाथ में दी, लेकिन स्टिल ये ग्रेटली इट वाज अपोज्ड बाय बोथ द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब रिफॉर्म्स भी बनाए जा रहे हैं लोकल्स के लिए और उनके हाथ में पावर भी दी जा रही है, बट इसमें एक चालाकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि तमाम जो एक्चुअल पावर है और एक्चुअल राइट्स हैं वो किसके हाथ में रहेंगे, वो गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के हाथ में रहेंगे, व्हिच वाज अल्टीमेटली द पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो लोकल्स के पास जो है वो सिर्फ दिखावे की पावर थी, वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते थे। बट इन द फ्यूचर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थे और ये जो रिफॉर्म्स बने थे, इन्होंने फ्यूचर में आफ्टर पार्टीशन जो है वो काफी ज्यादा जब इनको फॉलो किया गया तो उस वक्त जो है इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मीनवाइल पार्टीशन से पहले दे वरंट इन द फेवर ऑफ द लोकल्स। सो इस वजह से इस जो एक्ट था इसको बहुत ज्यादा जो है इसके अगेंस्ट आवाज उठाई कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। सो मूविंग फॉरवर्ड, दरअसल हुआ क्या था, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये बुरी तरह से फेल हो गई तो एक व्हाइट पेपर जो है वो इशू किया गया। अब व्हाइट पेपर क्या होता है, बेसिकली व्हाइट पेपर सफेद कागज को नहीं कहते, ये एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर सोल्यूशन दिया जाता है कि अगर ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जा रही तो इसके सोल्यूशन में हमें क्या करना चाहिए। तो एक व्हाइट पेपर जो है सजेशन के तौर पे इशू किया गया 1933 में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने चाहिए, एक कमेटी ऐसी बनानी चाहिए जो कि जो है वो लोकल्स को सेटिस्फाई कर सके और उनके लिए कुछ रिफॉर्म्स जो है वो बना सके। सो द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी वाज पब्लिश्ड इन 1934 that was contained in a bill of law. The report along with the bill was passed in the British Parliament. After the royal assent, the act was enforced in the country as Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 consisted of two parts. One part was central and the other part was the provincial. So my dear students, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई और बाकी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाई गई, लेकिन ओरिजिनल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। ये दिखाने को सिर्फ ऐसा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है उनके इख्तियार में भी कोई पावर होगी, अल्टीमेटली था नहीं। तमाम राइट्स जो थे वो वाइस रॉय और गवर्नर जनरल के ही अल्टीमेटली हैंड में थे। सो दैट इज व्हाई इट faced great opposition. So moving forward towards the Congress ministries 1937. अब यहाँ क्या हुआ था, the 1937 elections witnessed the Congress party winning less than 40% of the seats despite claiming to represent 95% of the population. So अब हुआ क्या कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ अपोज द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। अब दोनों ने इसको अपोज किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग फेस द टास्क ऑफ कन्विंसिंग द सपोर्टर्स फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। अब उन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को तो अपोज करते हैं, बट स्टिल उन्होंने इलेक्शंस के लिए पूरी तैयारी की और उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा कि आप वोट जरूर कास्ट करें, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू कास्ट द वोट। सो उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड ड्यू टू द पर्सनल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद इन मुस्लिम लीग। बहुत ज्यादा डिवीजन थी और कांग्रेस जो है इट एडवोकेटेड द जॉइंट इलेक्टोरेट्स। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जॉइंट इलेक्टोरेट जो है उसके ऊपर फोकस किया और विद इन मुस्लिम लीग जो है वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे। कांग्रेस इलेक्टोरल सक्सेस वाज लिमिटेड टू हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, विनिंग लेस देन 40% ऑफ द सीट्स डिस्पाइट क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट 95% ऑफ द पॉपुलेशन। द मुस्लिम लीग इलेक्टोरल परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग, winning only 106 out of 491 Muslim seats.
सो अब यहाँ पे क्या है कि कांग्रेस को जो है वो मेजॉरिटी उन्होंने विन की, और मुस्लिम लीग में जो है क्योंकि डिवीजन थी, इस वजह से उनको जो है वो काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई, इन्होंने बहुत कम सीट्स विन की। और इससे क्या हुआ कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है वो बनाई गई, और जुलाई 1937 में कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो कि सिर्फ हिंदूज को फेवर कर रही थी, जैसे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, उसके अलावा जो स्लॉटरिंग है काउ की, उसको मना कर दिया गया, जिससे मुसलमान जो है वो बहुत ज्यादा नाराज थे। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई मुस्लिम्स के ऊपर, लीडिंग टू द टेंशंस एंड रायोट्स। Reports like the Pirpur report highlighted the injustice under the Congress rule against the Muslims। और इसी के रिजल्ट में जो है वो पीरपुर रिपोर्ट जो है वो आई थी, क्योंकि मुसलमानों को बहुत ज्यादा जो है वो सप्रेस किया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस ने मेजॉरिटी सीट्स जो है वो विन की थी। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डे ऑफ डिलीवरेंस 1939। अब डे ऑफ डिलीवरेंस क्या है? द डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर 1939 मार्क्ड एज अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब कांग्रेस ने जब मेजॉरिटी सीट्स बना ली और उन्होंने इंडियन जो हिंदी है उसको और अपने रिलीजन को जो है बहुत ज्यादा प्रमोट करना शुरू किया, हिंदी तालीम जो है या हिंदू इज्म जो है उसको जो है वो प्राइमरी तक मस्ट कर दिया, और तमाम जो है वो हिंदू मुसलमान जो है वो इकट्ठे पढ़ रहे थे, तो इट वॉज अ रियल सेटबैक फॉर द मुस्लिम्स। सो अब हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वॉर 1-2 बिगेन हुई, तो कांग्रेस जो है उन्होंने डिमांड किया कि उनको पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में अगेन ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से एक बहुत बड़ी फोर्स जो है वो हमें चाहिए। तो इसके रिजल्ट में जो गवर्नमेंट थी या जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने डिमांड की कि आप पहले पावर जो है वो हमें ट्रांसफर करें। तो जब ऐसा नहीं हो सका तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, तमाम जो मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के उन्होंने रिजाइन किया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से जाना, और अल्टीमेटली मुसलमानों की जो है वो कांग्रेस रूल से जो है वो जान छूट गई। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लाहौर रेजोल्यूशन 1940, एक बहुत अहम जो है ये हिस्सा है तारीख का पाकिस्तान बनने में भी। सो द लाहौर रेजोल्यूशन 1940, also known as the Pakistan Resolution, marked as a significant milestone. It was presented at the All India Muslim League's annual session in Lahore, demanding the creation of an independent Muslim state in the areas where Muslims were the majority. So इसका बेसिक क्या था? इसका बेसिक पॉइंट ये था कि वहां पर एक स्पीच दी गई जिसमें बताया गया कि मुसलमान जिन इलाकों में उनकी ज्यादा हैं वो उनको जो है वो अलहदा से एक वतन बना दिया जाए, और ये 1940 में फजलुल हक जो है उनकी उन्होंने प्रेजेंट की इट कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जहां पे मुसलमानों की जो है वो मेजॉरिटी है। मोहम्मद अली जिन्ना also supported the resolution, emphasizing the religious, social and cultural differences between Hindus and Muslims. The resolution was initially met with the hostility from Hindus and indifferences from the British. So इसमें जो है दोनों ने, हिंदूज और ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट में तो इसको अपोज किया। However, it became a turning point in Indian history, leading to the demand for a separate homeland for Muslims, और अल्टीमेटली 1947 में जो है वो पाकिस्तान बन गया। और लाहौर रेजोल्यूशन को आज भी हम पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान डे के नाम से जो है वो अभी भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ऑन एवरी 23rd March। So my dear students, next was the World War II and the CRISP mission. अब ये क्या चीज है? During World War II, the British government sought Indian support. In 1942, the CRISP mission proposed limited dominion status for India, but it was met with rejection by both Muslim and Hindu leaders. अब क्रिस्प मिशन में क्या हुआ था कि सर स्टैफर्ड क्रिस्प जो थे उन्होंने एक क्रिस्प प्रपोजल भेजा और न्यू दिल्ली में 1942 में, लेकिन इस प्रपोजल का एम क्या था? टू एड्रेस इंडियन एनेक्सिटीज एंड इंक्लूडेड पॉइंट लाइक फॉर्मिंग एन इलेक्टेड बॉडी टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. So during the war, Britain would retain control over India, but after the war, India would be granted dominion status with internal and external autonomy. So उन्होंने क्या कहा कि अभी वर्ल्ड वॉर 2 में आप हमारे पास रहने दें, पावर जो है ब्रिटिशर्स के पास, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी हम तमाम पावर आपको ट्रांसफर कर देंगे. लेकिन इस प्रपोजल को बहुत ही धचका लगा था क्योंकि इंडिया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको मानने से इनकार कर दिया था. सो द प्रोविंसेस नॉट एग्रीइंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कुड ऑप्ट आउट एंड फॉर्म द ओन सेपरेट यूनियन विद द ऑप्शन टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ. एन interim government compromising different Indian parties would be formed during the, यानी कि एक अबूरी हुकूमत जो है वो बना दी जाएगी वर्ल्ड वॉर के दौरान विद डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स अंडर द वॉइसरॉयज कंट्रोल, यानी कि अल्टीमेटली कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगा. सिर्फ एक अबूरी हुकूमत बना दी जाएगी जिसमें मुस्लिम लीग,
कांग्रेस और ब्रिटिशर्स तीनों शामिल होंगे, लेकिन पावर किसके पास होगी? ब्रिटिशर्स के पास। मोहम्मद अली जिन्ना एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द प्रपोजल फीचरिंग दे वुड एरोड मुस्लिम इंटरेस्ट, और उनको पता था कि अल्टीमेटली ये सप्रेस करेंगे मुसलमानों को। तो कांग्रेस ऑल्सो रिजेक्टेड द प्रपोजल्स विद गांधी क्रिटिसाइजिंग देम एज inadequate. So next is the Shimla Conference. So Shimla Conference aimed to discuss the future of India after World War II. However, it failed to achieve a consensus among Indian leaders. अब ये किस तरीके से, क्यों ये फेल हुई? So Lord Wavell convened the Shimla Conference in June 1945 to form a coalition interim government, यानी कि वो एक अबूरी हुकूमत बनाना चाह रहे थे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, बट कायदे आजम रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम लीग वाइल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रिप्रेजेंटेड कांग्रेस। अब हुआ क्या कि द कॉन्फ्रेंस एम टू डिस्कस द वेवल प्लान which proposed reconstituting the Viceroy's Executive Council with representation from political parties. Congress was motivated to align with British government to gain power and undermine the demand of Pakistan. अब यहाँ तक क्योंकि 1940 में उन्होंने ये कह दिया था कि हमें, मुस्लिम लीग ने ये बता दिया कि हमें एक आज़ाद वतन चाहिए, तो यहाँ जो है हिंदुओं ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कहा कि हाँ ठीक है, हम आपकी जो ये शिमला कॉन्फ्रेंस है इस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करते हैं, एक अबूरी हुकूमत बनाते हैं। लेकिन कायदे आजम ने इसको सरासर रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम फिर से, हमें अंडरमाइन किया जाएगा, हमें सप्रेस किया जाएगा। सो वी टोटली डिसएग्री विद इट। और हिंदूज जो है वो स्टिल जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जो है थोड़ी बहुत साजिश जो है यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। So Muhammad Ali Jinnah insisted on the fundamental principle of Pakistan leading to the deadlock in the conference. So कायदे आजम ने जब इसको अपोज किया तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस को it lead to a deadlock. So moving forward towards इनके जो है वो इंटरेस्ट जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रास्ट था. कांग्रेस अपोज द आइडिया ऑफ मुस्लिम लीग and the conference failed due to the inability of Congress and Muslim League to compromise. और इसी वजह से यहाँ पे जो है ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो है it ended. So the general elections 1945 and 1946, अब इन जनरल इलेक्शंस में जो है वो Muslim League marked a significant democratic exercise. The Muslim League won a majority of Muslim seats, strengthening the demand of Pakistan. अब ये जो जनरल इलेक्शन हुए इसमें एक डिमांड थी कि जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है वो एक सेपरेट जो है वो स्टेट बन जाए. So, the 3rd June Plan 1947, the 3rd June Plan, also known as the Mountbatten Plan, was a pivotal development in the history of the Indian subcontinent. It was announced by the Lord Louis Mountbatten, the last British Viceroy of India. On 3rd June 1947, the Mountbatten Plan proposed the partition of India into 2 independent nations, India and Pakistan, and the transfer of power to the leaders. तो यहाँ Mountbatten ने ये फैसला कर दिया, दरअसल एक तवील जद्दोजहद के बाद मुसलमान लीडर्स की, और ये पता चलने के बाद कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, माउंटबेटन ने ये कहा कि ये 2 अलग अलग स्टेट्स बनेंगी. जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वहां मुसलमान जाएंगे, जहां हिंदुओं की अक्सरियत है वो एक अलहदा स्टेट बनेगी, और पावर्स जो हैं इन दोनों को अलहदा जो है वो दे दी जाएंगी, और ब्रिटिशर्स का फिर इससे कोई ताल्लुक भी नहीं होगा. एंड अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह ऑन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान केम इनटू बीइंग. और on every 14th August we celebrate this day. However, this momentous occasion was marred by the tragic communal violence that accompanied the partition, leading to the immense suffering and displacement. So my dear students, बहुत ज़्यादा displacement, लोग बेघर भी हुए, migrations हुई, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कत्लो गारत भी देखने को मिला, बहुत ज़्यादा violence जो है वो हिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला जितना इस पार्टीशन के दौरान देखने को मिला. बट अल्टीमेटली हमें जो है एक आज़ाद वतन जो है वो मिल गया. सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स, हमने तमाम जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पढ़ी फ्रॉम 1905 till 1947. Now is the time for practice. This is the worksheet that you can download from the description box below, or you can also get it in print form by your teacher. So pause the video and quickly complete the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now quickly note down your homework. For your homework, you will complete the skill 1.10 till 1.11 and 1.12. ये कि पेज नंबर 15 और 16 पर दिए गए हैं. आप इसमें वर्कशीट जो है उसको QR कोड्स में दी गई हैं, स्किल शीट्स, आप इनको कंप्लीट करेंगे. फर्दर यू विल ऑल्सो कंप्लीट द रिसर्च एंड एनालिसिस गिवन ऑन पेज नंबर 17. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर होमवर्क. एंड मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द कंक्लूजन, आज के लेक्चर में हमने तमाम इम्पॉर्टेंट जो हैं वो
पॉइंट्स जो हैं उनको नोट डाउन किया, किस तरीके से क्रिस्प मिशन हुआ, किस तरीके से जो है वो इंडियन एक्ट पास हुआ, उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. बहुत सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी और ये तमाम पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं, ये स्ट्रगल शो करते हैं मुस्लिम लीडर्स की, और इससे आपको ये भी पता चलता है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ये बहुत मेहनत और जद्दोजहद के बाद हासिल किया है. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.